So Volatility 2.0 is a game wherein we will play and understand that it is not only the Sensex or the Nifty level when they goes up or down, but there are certain other things, other avenues, if they become attractive or they are not so attractive. And looking at all those things, we can actually decide vis-a-vis that what is important. For instance, if we expect 9% return in equity, and if we expect 9% return in debt at a particular point of time, what one would think that it is good to invest into debt because that is less riskier or no risk is there, and you are getting generating 9%. On the other side, in equity, by taking risk, you are getting 9%. So it is important to see certain other ratios through this game. And based on that, you make a decision whether you should be in equity or not. There are some points to understand. And today's presentation will be taken by Varun Mittal, who is a volatility coach and an advocate from Ghaziabad, Delhi region. And amazing way, amazing storyteller, the way he conducts programs for his investors and people all around. I think he has created his own place in making uh, things easy for us to understand. And there is a natural style, and I think that this style continues and this continue to develop. And one of our very core group member also. So really looking forward to the session, and let's enjoy the session, Volatility 2.0. And while the game is on, after some slides, you will also divide the whole group into few teams. And as a team, you will all try and take decision. So if you are playing and if you have decided that you will be in this session, so be there for next 1 hour or so, and try to be in. I'm sure each one of us will be getting something uh, for rebalancing and for making our clients' portfolio a little more better with this understanding. So over to you, Varun. आइए हम लोग देखते हैं Volatility 2.0. Looking forward to the session. Thank you so much, Kananji. Thanks for this wonderful opportunity to present this newly launched game, Volatility 2.0. Actually, CSR is the short form of this game, and I remember this game was launched on 28th of Feb, uh, on the birthday of our three big volatility coaches, Dr. Celso, Ramakrishnan, and Shrikant Mathur Bhai. Yeah. So, uh, thank you so much. Thanks for all the attendees who attended on the time on time. This my presentation will be in Hindi and English both mixed language. And first of all, जैसा कनक जी ने बताया, the purpose of this game is just not to understand the things technically, like PB, VIX, or G-Sec ratios. Also, it is a very good tool to engage our investors. क्योंकि गेमिफिकेशन के थ्रू जिस तरीके से हम इन्वेस्टर्स को सिखा समझा और बता सकते हैं, उतना आसानी से हम कई बार टेक्निकली पीपीटीज के थ्रू बता पाना, इट इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट. सो आज हम वॉलेटिलिटी गेम 2.0 खेलेंगे. उससे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ. Is the investment is an art or a science? Investment is an art or a science? Yes, please. It's both. Both? Okay. Yeah. Combination of both. Okay. I feel investment is science. Sometimes to have the mindset, that's an art. Yeah. Sometimes it is art, sometimes it is science, but sometimes it is both art and science. When we talk about maths, maths is an art or a science? Maths is science. Maths is pure science.
That's the point. So here we are starting our presentation. आप लोगों को मेरा स्क्रीन शो हो रहा है, पीपीटी शो हो रही है? Not yet. नहीं नहीं कनक जी प्लीज हेल्प मी आउट. नहीं शायद आपको मुझे प्रेजेंटर बनाना है. Yeah, Varun, you are a co-host. You have to share the presentation, Share. probably. Okay. I think now the presentation is on screen. Absolutely. Okay. So here's a word is called higher maths. First, we will understand what is higher maths. When we talk about maths, 1 plus 1 is equal to 2. And this is same for all age groups. But when we are talk about higher maths, it is something different. How it is different? Look, जब हम अपने घर से ऑफिस आते हैं, it will take half an hour or 15 minutes on the way. और so many things are passed away, आती हैं जाती हैं और हम उसको देख करके नजरअंदाज कर देते हैं और अपने ऑफिस आ जाते हैं, क्योंकि ये एक रूटीन है. दिस इज कॉल्ड मैथ्स. हमारे लिए एक मैथ्स है. रोज ऑफिस से घर आना, घर से ऑफिस जाना एक मैथ्स है. से सपोज कभी आप अपने साथ अपने 4 साल 5 साल या 7 साल के बच्चे को ऑफिस लेकर के आते हैं और वो ऑफिस के रास्ते में बहुत सारी चीजें ऐसी नोटिस करता है जो आपने कभी नोटिस नहीं करी. दिस इज कॉल्ड हायर मैथ्स. एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ कोट करता हूँ. आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक एफडी कराई जाती है और से सपोज करिए 1 साल की एफडी कराई गई और 7% इंटरेस्ट मिला, तो इन्वेस्टर जो बैंक में पैसा डालता है वो कभी भी बैंक जाकर के थैंक्स नहीं बोलता है, बिकॉज दिस इज अ मैथ्स. उसने 1 लाख रुपए दिया और 1 लाख रुपए का 1,07,000 रुपए वापस मिला. पर आपने देखा होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बीइंग एन फाइनेंशियल एडवाइजर और इन्वेस्टर और वोलेटिलिटी कोच और डिस्ट्रीब्यूटर, जब आप इन्वेस्टर का पैसा लेते हैं और उसमें एक जर्नी होती है, पैसा ऊपर जाता है, पैसा नीचे जाता है. एक समय बाद जब उसका गोल पूरा होता है इन्वेस्टर का, इन्वेस्टर कम टू यू एंड से थैंक्स नरेश भाई, थैंक्स पूजा मैम, थैंक्स कनक जी कि आपने उसका गोल अचीव कराया. दिस इज कॉल्ड हायर मैथ्स. हायर मैथ्स इज समथिंग जिसके अंदर मैथ्स तो है, पर मैथ्स के साथ साथ कुछ और भी है, कुछ क्रिएटिविटी है, एक जर्नी है. तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है. इसीलिए ये साइंस और मैथ्स दोनों है. इसीलिए ये आर्ट और हायर मैथ्स है. तो इसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या है. बहुत आसान शब्दों में म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ पर लिखा गया है. म्यूचुअल फंड इज अ पूल of for multiple investor to invest in a desired range of securities such as stock, bonds, and money market instruments. The mutual funds is managed by professional manager, fund manager, who make investment decision on behalf of investor without asking with from investors. ये बात बोलने की नहीं है, पर ऐसा होता है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में एक्चुअली हम लोग करते क्या है. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कई बार हम इन्वेस्टर को बहुत सारी बातें बताते हैं. एक बहुत बेसिक सी बात है जो कई बार बताने से रह जाती है, और वो ये है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट जर्नी इन्वेस्टर मस्ट हैव टू एक्यूमुलेट द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड. दैट्स इट. जितना ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ यूनिट्स होगा, उतना ही ज्यादा से ज्यादा लंबे समय में इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाएगा, म्यूचुअल फंड्स में पैसा बनाएगा. ये एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जो हमें इन्वेस्टर तक हमेशा पहुंचाना चाहिए. खास तौर से नए इन्वेस्टर को ये बात बतानी चाहिए. म्यूचुअल फंड इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा रेगुलेटेड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेगुलेटेड फंड म्यूचुअल फंड्स हैं. और सेबी इसके सेबी रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. और निफ्टी
चलिए, निफ्टी हम लोग बहुत कई बार सुनते हैं, कई बार बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज होती है ऐसा हम लोग कहते हैं, बट वास्तव में टॉप 50 कंपनीज नहीं होती, टॉप 50 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली 50 कंपनीज होती हैं। तो एक सवाल है मेरा आप लोगों से यहाँ पे, ये जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं, टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 50 कंपनीज होती हैं, ये कंपनीज कौन डिसाइड करता है? यस प्लीज, मैसेज में और या फिर अपने आप को अनम्यूट करके आप जवाब दे सकते हैं। हु डिसाइड दिस 50 कंपनीज? यस कनेक्ट, नरेश भाई साहब, मैसेजेस आए हैं। ओके, मार्केट कैपिटल ठीक है, बट वो मार्केट कैपिटल को कौन डिसाइड करता है कि वो सबसे बड़ी 50 कंपनीज कौन सी होंगी? ये कौन डिसाइड करता है? मैं बताता हूँ। वो Investors, I mean, sorry, shareholders. शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स नहीं, देखिए वो दो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, एक होती है क्रिसल और दूसरी होती है, क्रिसल इंडिया की कंपनी है, और S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर जो नहीं यूएस। नहीं, दिस इज एक मिनट कहाँ पे, क्योंकि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर 50 कंपनीज डिसाइड होता है, किसकी नंबर ऑफ शेयर्स एंड वैल्यू। वो तो कंपनी की रेटिंग ये सब क्रिसिल्स एंड बाकी रेटिंग एजेंसी देते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आपने पूछा है इसीलिए मैंने बोला है। बाकी आपसे सुनना पसंद करेंगे, ठीक नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन इस स्क्रीन पे भी मेंशन्ड है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कौन सी कंपनी अंदर रहेगी और कौन सी कंपनी बाहर रहेगी, सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन के अगर अगर अलावा कोई और फैक्टर है, तो वो है रेटिंग एजेंसीज। दो रेटिंग एजेंसीज हैं, एक रेटिंग एजेंसी है इंडिया की जिसे क्रिसल कहते हैं, और क्रिसल की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और दूसरा है S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर जो कि यूएस की कंपनी है। और दोनों कंपनीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कौन सी टॉप 50 कंपनीज निफ्टी की रहेंगी और कौन सी निफ्टी के बाहर जाएंगी, ये डिसाइड करती हैं। चलिए, ये बात रही निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी हमारा जो अभी गेम होने वाला है ना, उसके अंदर निफ्टी एक एक बेंचमार्क रहेगा। हम निफ्टी को एज अ इंडेक्स बेंचमार्क प्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए हमने निफ्टी के बारे में ये इंफॉर्मेशन रखी है यहाँ पे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जितना लंबा इन्वेस्टर स्टे करेगा उतना ही उसे इन्वेस्टमेंट में सक्सेस मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने कई बार देखा है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स और इन्वेस्टर्स रिटर्न में डिफरेंस होता है, और ये जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस इन्वेस्टर बिहेवियर की वजह से होता है। इन्वेस्टर बिहेवियर कई बार इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के अंदर एंगेजमेंट ना होने की वजह से दिखाई देता है। तो जब हम बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू, चाहे वो आईएपी हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो गेमिफिकेशन हो, बहुत सारी एक्टिविटीज से इन्वेस्टर को एंगेज करते हैं, तो वो गैप इन्वेस्टर बिहेवियर मैनेज करने में हम लोगों को हेल्प मिलती है। तो ये बहुत सारे इवेंट्स होते हैं मार्केट के अंदर। इंडियन मार्केट में जो जर्नी रही है वो ये प्रेजेंटेशन दिखाती है कि इतनी बड़ी जर्नी में या तो इन्वेस्टर स्टे इन्वेस्टेड लोग लंबे समय तक, अ, वो मोतीलाल ओसवाल की एक सेइंग है, सिट टाइट करके, है ना, तो एकदम बैठा रहे और कहीं ना हिले डुले तो लंबे समय में रिटर्न बना लेगा। और दूसरा तरीका है रीबैलेंसिंग करते हुए, इन्वेस्टमेंट के साथ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ रीअलाइन करते हुए पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करते हुए और अपने गोल्स को अचीव करें। तो यहाँ पर हम लोग गेम की तरफ आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। और ये वीडियो होप आप लोगों को शेयर हो जाए। हम्म।
चलिए, वीडियो शायद कहीं कोई समस्या है जिसकी वजह से शेयर नहीं हो पा रहा है वीडियो के आगे। अब हम लोग गेम की तरफ आगे बढ़ते हैं। गेम के अंदर Should I share the video if it is हाँ there? प्लीज आप वीडियो शेयर करिए सर, शायद यहाँ पे वीडियो नहीं चल रहा है। So this is the power of compounding video. हाँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग वीडियो सर पहली वाली स्लाइड का था। एनी हाउ अगर आप वो चला दें तो अच्छा है, अदरवाइज फिर हम Yeah. लोग आगे। Yeah. देखिए, बिल्कुल वही वाली बात है कि लंबे समय में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। मैथ्स और हायर मैथ्स, मैथ्स के अंदर दिमाग काम करता है और हायर मैथ्स में दिल काम करता है। लंबे समय में दिमाग काम करते करते थक जाता है और सो जाता है, जबकि लंबे समय में दिमाग के साथ साथ अगर दिल काम करे तो वो काम करता रहता है। तो हमें लंबे समय में इन्वेस्टर के साथ अगर एंगेजमेंट बनानी है तो हमें सिर्फ दिमाग पर काम नहीं करना होगा, इन्वेस्टर के दिल पे भी काम करना होगा। इसी बात के साथ अब हम लोग गेम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर, गेम प्रेजेंट। VG 2.0 और शेयर। देखिए, ये हम लोगों के लिए भी एक लर्निंग है कि ऑनलाइन गेम कैसे खिलाना है। ऑफलाइन गेम तो खिलाते हैं बट ऑनलाइन में हर बार एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। ये फुल स्क्रीन आ रही है, नहीं आ रही है? फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? ठीक है। Explain the terms first, and then we can create the teams. ओके ओके, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहली टर्म है पीबी। पीबी इज कॉल्ड प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है? प्राइस, अच्छा, इन्वेस्टर के साथ बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की कोई जरूरत भी नहीं है। इन्वेस्टर को बस ये समझ में आ जाए कि प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा अच्छा होता है या कम अच्छा होता है, इतना उसके लिए काफी है गेम पॉइंट ऑफ व्यू से और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। निफ्टी अगर ज्यादा है तो उसको नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मिलेंगी, या फिर निफ्टी कम है तो उसे नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मिलेंगी, ये समझने की बात है। वाई इसकी वी आई एक्स एक नया रेशियो है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स रेशियो जो है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है।
अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो अच्छी है, या वॉलेटिलिटी कम है तो अच्छी है। तो यहाँ बस हम इसको बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक टेक्निकल गेम नहीं है, ये एक एंगेजमेंट गेम है। तो मैं आपको बताता हूँ, पीवी, प्राइस टू बुक वैल्यू, हमेशा जितना कम आपको मिले उतना अच्छा है। वॉलेटिलिटी आपको जितनी कम मिले उतनी अच्छी है। निफ्टी आपको जितनी सस्ती मिले उतनी अच्छी है। जीसेक 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 एक रेशियो इसके अंदर रखा गया है। अगर एक इन्वेस्टर कुछ नहीं इन्वेस्ट करता और वो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जीसेक में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसे उस समय का जितना रिटर्न है वो मिलेगा। तो वो आपको नीचे जो तीन बॉक्सेस दिए हुए हैं उसमें आपको दिखाई देगा। और एक इन्वेस्टर अगर सिर्फ डेट में इन्वेस्टमेंट करता है, 6% रिटर्न कमाता है, तो उसकी क्या रिटर्न आएगी। और वो एक इन्वेस्टर जो रीअलाइन नहीं करता, रीबैलेंसिंग नहीं करता, रीशफल नहीं करता, टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करता अपने इन्वेस्टमेंट्स को, तो वो अगर सिर्फ सिट टाइट वाली सिचुएशन में अगर बैठ जाता है तो वो कितनी रिटर्न बनाता है। ये आपको, ये तीन कॉलम आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये आपको ये बताएंगे। और ऊपर के जो चार कॉलम है वो ये बताएंगे कि अगर पोर्टफोलियो को हम रीबैलेंस करें हर हर स्टेज पर, पीबी की हेल्प से, वोलेटिलिटी इंडेक्स देखते हुए और अर्निंग रेशियोज देखते हुए, तो इन्वेस्टर कितनी रिटर्न बनाता है। सर, इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, अदरवाइज हम लोग गेम की तरफ आगे बढ़े। I think we will just create the team, and while we play in between, maybe after a round, we can just share. So, नीचे में आप सारा देख ही पाएंगे. If you were invested into 100% GSEC, what is the value? If you were invested into 100% equity, then what would have been the value? If you were invested 100% into debt, then what would have been the value? And यहाँ पे we need to just invest into equity and debt. And again, this is a 1 year thing. You all will be given 1 crore each, and in debt you will be getting 6%, and in equity whatever the return comes in 1 year, based on the yield ratio, Nifty, volatility index, and PV ratio. You will have to decide whether you should put your money for 1 year into equity or debt. That's it. So everything as you explained, I think let's do it. So we are dividing the whole group into 4 teams, A, B, C, D, and we will just create that team. So in the team A, which is room 1, we will have so we have Atul, Balkrishna Agarwal, and all of them. So we are making Naresh Kumar Verma as the captain. Okay? So Naresh ji, you are the captain of room 1, which is team A. And other members will be there in the group. You will be able to understand. And the second room, we will have Pooja Luthra from Agra. She will be the captain. Okay, so Pooja, you are the captain of second group. Perfect. And third room, we can have who is, can I see? We have Prajapati ji and Vivek Khemka. So Prajapati ji, you are there? Okay, he is there. जी सर So जी हाँ Prajapati ji will be the captain of the third team. वरुण, आपको भी थर्ड टीम में दिखा रहा है, लेकिन आप प्लीज एंटर मत करिएगा. And fourth team, Dibyendu will be the captain. ठीक है? So Dibyendu, fourth team. So we are just opening the rooms. You have understood the game? Any questions so far? In the room, you will have to go and decide what should be your allocation at this point of time. Okay, and then in next round again we will do that. We'll play around 4 to 5 rounds and the game will be over. So you can see like 7.58. So 7.62 is the previous month's 10 years GSEC. Yield ratio is actually gone up from 1.63 to 1.64. Nifty has come down from 5224 to 5137. So this is what you can see. And this figure will keep on changing. So as a team, you will have to decide. Are we good to go? We are putting you into the breakout rooms. Varun, you please don't go into any room. Sure. Okay, so we are opening all the room. Maybe in 2 minutes or 3 minutes, you all try and come out, huh? Just decide on equity and debt.
वरुण यही रहने दीजिए, स्कोर कार्ड जो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर्स ओनली दे विल डिसाइड एंड इन्वेस्ट. सो एज वी कैन सी, टीम रूम 3 में दिबेंदु, यू आर येट टू ज्वाइन. In first group, only Naresh Verma ji has joined. Harvinder ji, Jayant, Prabhakar, Praveer Kumar Ghosh, please join the group. आपके स्क्रीन पे एक ज्वाइन बटन आएगा, प्लीज ज्वाइन द ग्रुप. हरविंदर जी, यस. प्रभाकर जी, प्लीज ज्वाइन द फर्स्ट ग्रुप. पनीर वोरा, प्लीज ज्वाइन द सेकंड ग्रुप. विवेक खेमका, प्लीज ज्वाइन द थर्ड ग्रुप. दिबेंदु, प्लीज ज्वाइन. सर दोबारा भेजना, वो ज्वाइन मुझसे शायद कैंसिल हो गया वो. दिबेंदु, प्लीज ज्वाइन द ग्रुप. दिबेंदु. दिबेंदु. दिबेंदु is lost. Okay. Team D, room 4. नहीं ना अभी. Since Dibendu has not joined, so Rajiv Lochan Ghosh is the captain for the fourth team. So some of us are still in the main room. We will have to go to the other room and decide. I know these days, after COVID and all, staying online on a, especially for game or maybe for a presentation, it's not so easy. But we are still trying to do an amazing work. Varun. Yes, sir. So as we can see, more or less 5 people in one group, people have joined. Yes, sir. ओके सर, ये जो ग्रुप वाला होता है ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, यहाँ से मैं भी मैनेज कर सकता था? I don't know. I think I am able to do it. But if we make the host to you, then you will be able to do it. Okay. As of now, Dibendu has not joined. Mr. Vora and Vivek Khemka has not joined. Abhishek ji नए व्यक्ति आए हैं शायद. रूम 1 फुल है सर. हाँ, one is. अच्छा, you can see everything. हाँ. रूम 2 में सिर्फ 2 ही जन है. रूम 2 में कोई गया ही नहीं वहां पे. हाँ, रूम 2 में पार्टिसिपेंट्स 2 कम है. मैं गया था फिर वापस आ गया, वहां कोई डिस्कशन ही नहीं था. तो करिए, आप करिए. मैं आज पैसे मोड पे हूँ. पैसे. Okay, so we will close all the room and let's see. In 60 seconds, all the rooms will close and people will come back. So, Abhishek, आप रहेंगे एक्टिव मोड में ग्रुप 2 के लिए. हरविंदर जी, नमस्ते. आई थिंक मेरे ख्याल से हम लोगों की टीम सर सी वाली थी ना. नमस्ते सर, नमस्ते. वो मैं क्यों? बता दूंगा. हाँ हरविंदर जी और नरेश वर्मा जी की टीम 1 है, टीम ए हाँ हाँ. के अभिषेक और पुरुषोत्तम जी, विकास सुराना, इनकी टीम 2 है. हम्म, जीतलाल प्रजापति और चंद्रशेखर जी, टीम सी. सुरजीत मंडल, इनकी है टीम सी. हाँ और ठीक है टीम ठीक. 4 है जितेंद्र बंबानी एंड दिब्येंदु फाल्गुनी, राजीव लोचन घोष एंड सुरेश ठीक कुमार. है ठीक है. तो वरुण जी, हम लोग ने डिसाइड किया है टीम सी की तरफ से कि 60% इक्विटी और 40% डेट.
दूसरा ठीक है, बंदा। प्रजापति जी आप कहते हैं टीम ए सी 40%, सी टीम सी, ओके, टीम सी। 40 डेट 60 इक्विटी। हाँ हाँ जी जी जी। टीम टीम ए टीम ए 20 20 टीम ए 20 डेट 80 क्या 80 करा इक्विटी, इक्विटी 80%। ओके। टीम बी एंड टीम डी, टीम बी में कुछ 25-75 कर लेते हैं डेप्ट इक्विटी बी में। टीम बी 25-75, ओके। टीम डी मैं आपको, राजीव जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। 30% debt and 70% equity. ओके, ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, क्या तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब अगर डेट में लगा रहे हैं तो 7.58% मिल रहा है, और इक्विटी में लगा रहे हैं तो 4.61% मिल रहा है। ऐसा समझ में आ रहा है? Yes. क्या समझ में आ रहा है? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई पीपल आर पुटिंग मोर इनटू इक्विटी एंड लेस इनटू डेट? और सर मतलब सबसे ज्यादा इक्विटी में टीम ए ने डाला है। यस सर इक्विटी भी तो सस्ती है ना नीचे, या निफ्टी, या इसकी वजह से डाला हाँ ही। हाँ, और बट पीबी इसमें रेशियो बहुत हमें, एक्सपेंसिव है। व्हाट हाँ इज द साइन फॉर अ पीबी रेशियो टू बी सर एक्सपेंसिव? मैं पहले से काम है, पहले 5.47, अब 5.38 है सर। ये जो डेटा है ऊपर जो आपको ब्लर डेटा दिखाई दे रहा है, ये 1 महीने पुराना है। ओके, फ्रॉम दिस डेट। हाँ, फ्रॉम दिस चलिए डेट। ठीक है वरुण, आप ले चलो, करो आप। अब इन्वेस्ट इसमें करिए और देखते हैं क्या आता है 1 रिजल्ट। करोड़ रुपए को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स सी। सर ये जो ब्रेकआउट रूम का ये जो बॉक्स दिख रहा है, इसको क्रॉस कर सकते हैं? आप बंद कर दीजिए ना आप अपने तरफ से। ठीक है, मैंने बंद कर वो दिया। तो मेरे, हाँ। रेशो क्या क्या लिखे हैं? अभी तो जब रिजल्ट देखते हैं ना भैया, ये बने हमारे। देखिए सर, ये है जनवरी 2008 से जनवरी 2009, और इक्विटी है ये वाला माइनस सही रहा। 44%। माय गॉड, लग गई, हाँ, लंका लगी ये लेगेसी हमारी। वाला। आई डोंट नो व्हाट मेड यू ये वाले ऑल का। इन्वेस्ट लेट इनटू बात हो इक्विटी गया। सो मच। सो We यस, shouldn't be ओवर so टू much यू bullish. 11 में कितनी वैल्यू बनी? वरुण, प्लीज एक्सप्लेन। 65 बनी, ये यहाँ इसका पे पे कम बनी। इस समय जो पीबी है, प्राइस टू बुक वैल्यू, इस समय अभी का पीबी इज 4.17 और 4.20 समथिंग। हाँ, और इस समय मार्केट एक्सपेंसिव है, ठीक है। और ये जिस समय का डेटा है, उस समय का पीबी है 5.38। तो उस समय मार्केट और भी ज्यादा एक्सपेंसिव थी, बट ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट एक्सपेंसिव है तो एक साल बाद वो एक्सपेंसिव ही रहेगी या फिर वो चीप रहेगी। बट हाँ, यहाँ पर जो डेटा है वो ये बताता है कि मार्केट इज नॉट सो चीप। दूसरा, वॉलेटिलिटी इंडेक्स इस समय तक एक्टिव नहीं था, तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स मिसिंग है। ये जिस भी समय की बात हो रही है, उस समय का जो निफ्टी था वो 1 महीने पहले 52 था, 1 महीने बाद 51 है। 37। और यील्ड रेशियो और अर्निंग यील्ड 4.61 एंड 1.64 था। यहाँ पर जो जेसेक का रेट है वो है 7.58। तो अब पहले साल में 1 करोड़ रुपए के टीम ए ने, क्योंकि 80% इक्विटी, सबसे ज्यादा इक्विटी रखी थी, तो उसने बनाए हैं 1 करोड़ रुपए के 65 लाख रुपए। टीम बी ने बनाए हैं 1 करोड़ रुपए के 68 लाख रुपीस। टीम सी ने बनाए हैं 1 करोड़ के 75 लाख रुपीस। और टीम डी ने बनाए हैं 1 करोड़ के 70 लाख रुपीस। तो जिसने सबसे कम इक्विटी रखा था वो इस राउंड का विनर रहा। बट अगर आपने एसेट एलोकेशन नहीं करी, अगर आपने 100% पैसा इक्विटी में डाला होता, 100% पैसा अगर इक्विटी में डाला होता, तो आपके 1 करोड़ रुपए के बने होते, कितने बने होते? हाँ, यहाँ पे है ना 55,96,000। हाँ, 55,96,000, क्योंकि आप लोगों ने समझ में आ रहा है? पोर्टफोलियो को बैलेंस किया था, इसीलिए आपका पोर्टफोलियो, किसी का भी पोर्टफोलियो 50 लाख से ज्यादा नीचे नहीं गिरा। तो ये एक वर्स्ट कंडीशन थी। आई होप कि अगली बार इतनी खराब सिचुएशन नहीं है,
तो अगला राउंड खेलते हैं, आप लोगों को फिर से 1-1 करोड़ रुपया देते हैं और डेटा देखते हैं। नहीं नहीं, आपका 1 करोड़ नहीं है, अभी इसी डेटा पे ही खेलना होगा, यही फिगर पे है। अब यहाँ इसी को ही एसेट एलोकेशन फिर से करना हो, यहीं से बढ़ेगा। ये क्या आपने लिखा है? शुरुआत का आपका 1 करोड़ तो माइनस हो गया है, तो रोशनी पॉइंट इज भड़कना नेगेटिव। तो पहला 1 करोड़ ध्यान रुपया रखें। नेगेटिव हो गया है सब लोगों का। अब दूसरा 1 करोड़ रुपया मिला है, उस 1 करोड़ रुपए का डेटा ये है। पीबी, देखिए मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि आप जो पीबी है ना उसको नोट करते रहिए, तो आप रेलेवेंटली देख पाओगे कि पीबी महंगा या सस्ता है। तो पीबी है पिछले महीने का पीबी, जो भी जिस भी डेट का ये डेटा है, पीबी था 3.27, अभी का पीबी है 3.27, वॉलेटिलिटी इंडेक्स 14 और यहाँ वॉलेटिलिटी इंडेक्स है 18, निफ्टी 86 से हुआ 8611, यील्ड रेशियो 1.4 से 1.41, अर्निंग यील्ड 4.84 से 4.84, और जीसेक 10 ईयर जीसेक बढ़ा है 679 टू 682। और तो विद दिस डेटा हम लोग ब्रेकआउट रूम एक बार फिर से ओपन कर रहे हैं, जाइए और 1 मिनट के अंदर डिसाइड करके आ जाइए और अपना इक्विटी या डेट एलोकेशन दे दीजिएगा। ये जी समझ हाँ। के रखिए यील्ड रेशियो क्या होना चाहिए कि आपको इक्विटी में रहना है या नहीं, और दूसरा पॉइंट है पीबी रेशियो, और तीसरा पॉइंट है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये तीनों पैरामीटर्स को देख के आपको डिसाइड करना है कि इक्विटी में रहना है या इक्विटी से बाहर रहना है। दैट्स इट। ठीक है सर, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट होना पैसा सर? क्या चीज? नेक्स्ट 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट होगा पैसा सर? हाँ, ये 1 ईयर के लिए जो अभी आपकी वैल्यू है उसको आपको इन्वेस्ट करना, इक्विटी या डेट जैसे भी है। अभी तो आपकी डाउन हो गई है वैल्यू जो हाँ भी जी, है, अब ठीक। आगे अपने को खेलना है। रूम ओपन कर रहे हैं, प्लीज ज्वाइन द रूम। Please join the room and decide on the asset allocation. Room 1, room 2 people are active, 3, 4 ठीक है, still active. More or less we have approximately 5 to 6 people in one room. कुछ 8 लोग यहीं पे हैं गए नहीं है अभी तक। सो अगर आप लोग किसी रूम को ज्वाइन करना चाहें, प्लीज डू दैट। We will close the rooms and in 60 seconds सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे वापस। रूम 3 में डिस्कशन बहुत जोर से है, रूम 4 में भी डिस्कशंस बहुत जोरों से चल रहा है। रूम 1 और 2 के सारे लोग डिस्कशन कर कर आ गए हैं गुड टू ओके। सो रूम 4 में दिव्येंदु, राजीव लोचन घोष, फाल्गुनी, जितेंद्र बंबानी, सुरेश कुमार जी हैं। और फाइनली अब आप लोगों को डिसाइड करके बताना है व्हाट इज योर एलोकेशन इन नेक्स्ट फाल्गुनी जी बोलिए। वरुण जी, टीम सी ने यस, अब डिसाइड आप बोल किया है। सकते हैं। यस वरुण। हाँ हाँ, जी, टीम वरुण सी जी, टीम सी ने डिसाइड किया है कि डेट जो रहेगा वो 75 रहेगा। 75 डेट, 25 हाँ इक्विटी। जी। ओके। टीम ए बी डी, नरेश भाई साहब आपका। हाँ, हाँ 60-40। 60 इसने डेट, किया। 60 विक्टर सहम गए हैं। 40। ओके। बी एंड डी, 60 इक्विटी सेम 60-40 सर, बी में। टीम ए का सर 40-60 करना है।
अच्छा, टीम ए का 40-60, 40 डेट 60 इक्विटी। हाँ जी, हाँ जी। ओके। टीम डी 80% इक्विटी 20% डेट। ओके। टीम डी 80% इक्विटी 20% डेट। तो टीम बी बचा है, बी फॉर बॉम्बे। हाँ, इसमें अभी 40-60। अभी लग रहा है टीम डी का गलत पड़ गया है क्या? 80 डेट आई थिंक बता रहे थे। एंट्री गलत हो गई है क्या वरुण जी? नहीं नहीं, तो ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब ये ठीक है। एक टीम डी अगर ये बताना चाहे कि उसने इक्विटी 80% क्यों रखी है। Because the PB ratio is less and the volatility index has also gone little low. ये दो फैक्टर्स हमने कंसिडर किए थे। वेरी लो नहीं है, वोलेटिलिटी है, लेकिन पीवी रेशियो उस हिसाब से हम लोग हाँ, ओके, यस। इफ टीम सी कैन टेल कि भाई उसने 75% डेट क्यों रखा है, जबकि इक्विटी आप देखिए कि टीम डी जो है इक्विटी 80% रख रही है और 25% इक्विटी टीम सी रख रही है, ऐसा क्यों? अब ये प्रजापति कि जी। हाँ जी, अभी ये इसलिए कि ये अपना वोलेटिलिटी इंडेक्स को जो है ये बढ़ रहा था, इस चक्कर में हम लोगों ने डिसीजन लिया कि जो है। ओके। यही इक्विटी की मजेदार चीज है कि एक को इक्विटी सस्ता दिखाई देता है और दूसरे को इक्विटी महंगा दिखाई देता है। महंगा हाँ, दिखाई देता है। चलिए तो इन्वेस्ट एक करते हैं। मिनट बिफोर आप इन्वेस्ट दबाएं, कुछ बोलना चाहूंगा कि देखिए हम लोगों ने पीबी रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 2 से 6 के बीच में रहता है। अगर 2 के नीचे चला जाए तो आप घर परिवार सब लोन पे डाल के भी खरीद सकते हैं इक्विटी मार्केट, लेकिन यूजुअली इतना नीचे मिलता नहीं है और 6 के ऊपर जाता नहीं है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव जोन है। तो मोस्टली 2 से 6 के बीच में। पिछले बार 5 के ऊपर था, देखिए कितना एक्सपेंसिव था। अभी ये 3 के पास है। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी चीप मार्केट, नंबर वन। दूसरा, वॉलेटिलिटी इंडेक्स का जो हम लोग रिजल्ट्स देखते हैं शॉर्ट टर्म में देखते हैं, लॉन्ग टर्म 1 साल के लिए वॉलेटिलिटी इतना ज्यादा इफेक्ट शायद नहीं करे। और ये तीसरी चीज आपको देखनी है यील्ड रेशियो। यील्ड रेशियो पिछली बार से अभी कम है और आप देखिए डेट भी कम हो गया है। तो डेट कम हो गया है मतलब डेट में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इक्विटी में अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे बन रही है कंपैरेटिवली। तो सो ऐसा करिए ये कि वरुण जी, पिछली बदल बार दीजिए तो मेरा। आप लोगों को ये नहीं सारे होगा डिसीजन प्रजापति जी, नहीं होगा। अब आप चेंज नहीं कर सकते हैं। पिछली बार तो जो आपने किया किया, नहीं, इस हम बार अब आप चेंज हम नहीं कर सकते हैं। वरुण, आप इन्वेस्ट कर दीजिए। राइट सर। ये समय है 30 सितंबर 2016। इक्विटी रिटर्न 13.67%, डेट का 6% और 10 ईयर जी से -2.26%। और इस तरीके से कुछ तो रिकवरी आई है। 2 करोड़ रुपए हमने अब तक इन्वेस्ट करे हैं और 2 करोड़ रुपए की कीमत टीम। 2 नहीं है, 1 करोड़ ही है। अच्छा, 1 ही करोड़ एक है। करोड़ है। इन्वेस्टमेंट वही है, बस वो अच्छा। 1 करोड़ से पहले हो गया था नीचे, अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। लेकिन सर एक चीज बोलना चाहेंगे, टीम सी की रिकवरी फिर भी है औरों से, ये कैसे डेट ज्यादा लेने पर भी। हाँ ठीक है सर, मोटिवेशन हाई रहना चाहिए। चलिए मोटिवेशन का सर। नहीं है, आपको ये समझना होगा। सर हाँ। पिछले राउंड में वो इक्विटी नहीं डेट के लायक बाजार था, ये वाला राउंड पूरा इक्विटी के लायक था। तो यही गेम का पर्पस यही है। अभी आप स्लाइड्स में देखेंगे, अभी गलतियां कर लीजिए, अच्छा है हम लोग यहीं कर हम्म। रहे हैं गलतियां, नॉर्मल मार्केट में हाँ नहीं कर रहे हैं। हाँ तो हाँ। इंपॉर्टेंट चीज यही है, एक राउंड और खेलते हैं फिर बाकी की पीपीटीज में आप लोग समझ जाएंगे क्या करना है। सो ठीक लेट्स है, ठीक। प्ले द थर्ड राउंड, वरुण। श्योर। तो विद इस बार पीबी, प्राइस टू बुक वैल्यू एक 4.7। बार और दबा दीजिए प्ले। एक बार और, हाँ, क्योंकि हाँ, वीआईएक्स मैं थोड़ा डिस्प्ले। देखना चाहता हूँ कि सच में व्हाट डिसीजंस वी टेक। लेट मी सी अ फिगर व्हिच, हाँ ये ठीक है, यहाँ हाँ, पे रहने आप दीजिए। घोष साहब फोटो खींच सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे देखो। पीबी टू क्या ग्रुप्स बनाया जाए या ऐसे ही डिसीजन ले लेंगे आप लोग? डिसीजन नहीं, बना लीजिए, आधा सेकंड के लिए ज्यादा सही है। ठीक है, 1 मिनट में आ जाइएगा लेकिन। हाँ, हाँ हाँ, तुरंत आ जाएंगे, तुरंत।
और जो नहीं जा रहे हैं और उनके कप्तान यहीं पे हैं तो यहीं पे डिसीजन ले लीजिएगा आप लोग। नहीं, सभी चले गए हैं मोरलेस। हाँ, अब इंटरेस्ट आ रहा है ना सर जीतने का। हाँ, नहीं नहीं, पहले फर्स्ट राउंड वाज लिटिल अनफॉर्चुनेट आल्सो। हाँ, इतना भी महंगा नहीं था 40% इक्विटी। नेगेटिव हो गया। मैंने एक्चुअली वो सब प्राइम क्राइसिस वाला साल था, हाँ 2008। तो वो तो ऐसे ही एक डेडली ईयर है वो है, या 2000 अगर आ जाता है आदमी उसमें ट्रैप हो गए तब तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी एनीवे। बट अच्छा ये अदरवाइज यही समझना है, यील्ड रेशियो का जो अपना रीजन है ना, जो आपको बताना है यहाँ पे, यील्ड रेशियोज, वन बहुत चीप है और टू एंड अबव हाई बहुत एक्सपेंसिव है, बस दैट्स इट। उसके बीच में यू विल हैव टू प्ले। और पीबी रेशियो भी वही है, 4 और उसके नीचे चीप है, और 6 और उसके ऊपर हाफ है, तो 4 से 6 के बीच में यू हैव टू प्ले। अब बस ये आप आ दो रहे हैं चीज सर, समझ में देखिएगा आ गया सारे एंड के इट इज सारे ना डन। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अब, क्योंकि पीबी चीप है। हाँ, ऑब्वियसली दे शुड डू। यस मोरल सभी लोग आ गए हैं। टीम ए बी सी एंड डी अपनी अपनी एलोकेशन तैयार है तो बता दीजिए। वरुण जी, सी का है 80% जो है, वीडियो बंद कर दो। 80% इक्विटी है। 20% है, राइट। हम्म। बी में 1090 टीम बी 10 डेट 90 इक्विटी, 90 इक्विटी। राइट। टीम ए एंड डी D, 95% equity, 5% debt. ओ टीम ए ग्रेट भाई, सबसे तगड़ा गेम टीम डी का है। T20 तो फिर भी हम तो लोग हम बाकी लोग से दो हार आदमी का टीम है ना, इसलिए इसीलिए छक्का लग जा रहा। टीम ए नरेश भाई साहब। अनम्यूट कीजिए। नरेश जी का नरेश जी 100% आप सॉरी सॉरी इक्विटी सॉरी, अनम्यूट है। 100 ही कर दो 20 सर, 100 20 ही कर दो। 20 हाँ 20 20 80। 80 20 डेट या 80 80। इक्विटी। ओके। सो मुझे लगता है सभी लोगों ने पीबी को पकड़ लिया है। प्राइस टू बुक Yes. वैल्यू क्योंकि 3 से नीचे है तो सबको सस्ता लगा, और सभी ने इक्विटी एलोकेशन अपनी भरा बढ़ा दी है। तो यहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं और देखते हैं कि अगले साल की रिटर्न्स क्या रहे। Oh देखिए, टीम डी इसलिए ईयर बाजी मार दी है। 2000, ईयर 2000 30 मई जबरदस्त रिकवरी, 60% इक्विटी ने रिटर्न दिया, 62%। और जिसिक का रिटर्न 4.15% और जबरदस्त रिकवरी के साथ 1 करोड़ रुपए के यहाँ पर। सर इतना सस्ता है, यील्ड रेशियो 1.27। अभी आप पीपीटी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि द क्लोजर वी आर टूवर्ड्स वन इज चीप, एंड दो या उसके पास है तब एक्सपेंसिव है। तो अगर ऐसा एक पीबी रेशियो रहता है और आपका यील्ड रेशियो रहता है तो बहुत सस्ता है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स एकदम शॉर्ट टर्म, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीने का खेला है ये, तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे मत जाइए। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स ज्यादा होने से एक्सपेंसिव है बाजार, नो डाउट, बट यील्ड रेशियो और पीबी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई थिंक 1 करोड़ के ऊपर सब आ गए हैं, तो बधाई दे दीजिए और फिर बाकी की स्लाइड्स दिखा दीजिए वरुण। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए मजेदार बात यह है कि किसी ने भी पैसा नेगेटिव नहीं किया, सबका पैसा पॉजिटिव हुआ है एंड ऑफ द डे। और हम लोगों ने सबने एसेट एलोकेशन किया इक्विटी और डेट में, और कहीं ना कहीं हमने पीवी रेशियो और वॉलेटिलिटी इंडेक्स के साथ साथ अर्निंग और रेशियोज को भी मेजर करना समझा है। तो अब हम वापस चलते हैं अपनी तो प्रेजेंटेशन में। टीम डी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ टीम बी, So, यस। thank you. We are the थैंक यू winners. थैंक यू। टीम बी सबसे ज्यादा रिस्क लिया टीम बी ने। हाँ Yes. चलो गुड। Good game. So Varun, we can close the game and we can go to the PPT and understand rest of the things.
ओके सर, इसके आगे का आप ही इसे क्लोज करिए सर, क्योंकि टाइम भी कम बचा है। ओके, सो दो रेशियोज हैं जो समझने के हैं, ये सारी की सारे कंटेंट इज वन पार्ट। कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? वी विल जस्ट सी द फॉर्मूला। यील्ड रेशियो क्या है? जीसेक बाय अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड इक्विटी मार्केट निफ्टी से कैलकुलेट हो रहा है कि क्या अर्निंग हो सकती है बेस्ड ऑन द पी रेशियोज, और जीसेक यील्ड मार्केट मतलब डेट का क्या रिटर्न्स है। सो अगर ये 1 के नीचे है तब तो मतलब इक्विटी मार्केट में आंख बंद करके डालिए, और 2 के ऊपर है तब आप डेट में रहिए, मतलब डेट इज गोइंग टू गिव यू अ मच बेटर रिटर्न। एंड 1 से 2 के बीच में यू विल हैव टू प्ले, यू विल हैव टू हैव सम इक्विटी, सम डेट और समथिंग लाइक दैट। सो करेंटली वी आर एट समवेयर अराउंड 1.75 1.8 चल रहा है अभी एज ऑफ नाउ। तो ऐसा नहीं है कि 2 में भी रिटर्न्स नहीं आते हैं, 2 में भी आया है रिटर्न्स, और 1 पे भी शायद नहीं आया है। इट ऑल डिपेंड्स, जैसे सब प्राइम क्राइसिस था फर्स्ट राउंड में आप लोगों का, तो वैसी सिचुएशन आ जाएगी, यू कैन नॉट हेल्प इट। तो इसके साथ साथ फिर आप अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स और पीबी रेशियो को भी देख लेते हैं तो यू कैन कम टू अ वेरी गुड कैलकुलेशंस। इस फॉर्मूला को फॉलो करके बहुत सारे बैलेंस एडवांटेज फंड भी यूज कर रहे हैं, स्पेशली वाइट ओक का जो फंड है वो यील्ड रेशियो को देखता है और इसको यूज करता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज वन एग्जांपल। एज यू कैन सी, अगर मार्केट में डेट में 6% है, इक्विटी में 4% है, तो आपका यील्ड रेशियो है 1.5। नेक्स्ट, as you can see, the average line of PB, this yield ratio keeps moving up. So average के अगर ऊपर में है then it is fine. It is not about ये 2 अच्छा है या खराब है, या 1 अच्छा है या खराब है। तो आपका ये जो नॉर्मल एलोकेशन जो है यील्ड रेशियो का, लॉन्ग टर्म एवरेज के अगर ऊपर है तो देन यू कैन थिंक ऑफ मोर डेट एलोकेशन। अगर ये उसके नीचे है तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम you should be into equity. And और एक चीज जो आपको देखनी है, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि इट इज मोर एक्सपेंसिव और मोर चीप। इट कैन बी एक्सपेंसिव और इट कैन बी चीप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए यील्ड रेशियो देखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी डोंट सी सर्टन थिंग्स विच इज नॉट easily the easiest thing to see is the Sensex or the Nifty, but there are quite a number of other things also. In fact, there are 9 parameters, and with few more games we will have 11 parameters, which should be seen for a mutual fund distributor to help his client really grow the wealth. Again, market valuation index, and this all of us have seen. This is again based on the market capitalization to GDP ratio. इन्वेस्टमेंट जर्नी हम सबको चाहिए 12%, बट रियलिटी ऐसी होती है ना कि 19 माइनस 24 एंड ऑल, सो 12 आता है, बट यू डोंट गेट द होल थिंग इन दैट फॉर्मेट, एंड वंस यू come out of equity and then you are left nowhere. So this is the normal story of anyone. So what you really need to do is try and invest on a regular basis in all type of markets so that you get the bottoms and you get the tops. And if you look at the yield ratio, you will be able to come out and at the top and enter more into the equity when it is down. ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप देखेंगे कि टोटल रिटर्न के लिए डेट का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे हम लोग। द नेक्स्ट स्लाइड इज एक्चुअली, if you add a little bit of debt into equity, you can actually increase your return with the risk adjusted return आपका बेस्ट हो जाता है। अगला स्लाइड देखेंगे, you will be able to see that. नेक्स्ट ये पुराना है, या दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये देखिए, एक सेम इक्विटी है और दूसरा सिचुएशन में अगर आप देखेंगे कि थोड़ा सा डेट बढ़ाया तो शार्प रेशियो हैज बिकम बेटर। हम लोग नॉर्मली रेशियो एनालिसिस जब करते हैं, हम देखते हैं कि शार्प रेशियो इफ इट इज मोर, इट इज अ आइडल फंड टू इन्वेस्ट। ओके,
so you see, just by adding a little equity debt to a fund or in an overall portfolio of your client also, you are actually reducing the risk. You are doing a risk, and the risk adjusted return will be much, much better. So it is ideal and advisable to have a component of debt at every point of time, unless you माने आपको yield ratio 1 or maybe less मिल जाए, you should have debt at every point of time, because this extra debt you will be able to invest into equity when the a real situation come like that. So उस तरीके से आप अपना overall sharp ratio को अगर बढ़ाना चाहते हैं, you should have debt component. If you want to ensure that the standard deviation is also optimal, क्योंकि जितना ज्यादा कम रहे उतना अच्छा है, तभी भी आपको डेट को बढ़ाना पड़ेगा. So ये दोनों रेशियोज को अगर आपको फायदा लेना है, समझना है, you should have a little debt into your overall portfolio at every point of time. This is the most important. I think हर IAP में हर client के पास ये slide आपको लेके जाना ही चाहिए. मैंने तो ऑब्जर्व किया है कि with this one slide you can sell to anyone. इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? It is self explanatory slide है. वरुण, आप इसे एक्सप्लेन करें और आज का गेम कंक्लूड करें. वरुण और एनीवन, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपके फोन पे होनी चाहिए ये, कि 1 साल, 5 साल और 10 साल में क्या रिटर्न्स होते हैं अगर आपने कैश शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या स्टॉक्स में डाला है. तो ओवरऑल स्टॉक्स की बात हो रही है. अगर 1 साल में ज्यादा से ज्यादा, समझ लीजिए ऑन एन हायर साइड 96% रिटर्न आया है और लोअर साइड 32% आया है, वही आप अगर 5 साल का होराइजन रखते हैं तो हायर साइड में 18% और लोअर साइड में -1. सी सेम थिंग, सेम सिनेरियो, बट आपकी लोअर साइड रिस्क खत्म हो गई 1%. और अगर आप 10 साल कर लेते हैं तो वर्स्ट सिचुएशन में भी यू विल जनरेट पॉजिटिव 5% रिटर्न एंड हायर साइड में 17% रिटर्न, which means in 1 year you may have a huge volatility higher and lower, and as the long term comes, maybe आपकी 96 से 17 हो गया है, but आपका lower side कितना protected हो गया है. This is market. So I think this will ensure that each and every investor of ours and we ourselves should stick to a particular strategy or a fund, and we can actually reap a better return out of that. एक्चुअली सर, ये वही वाली बात है जिसमें आपने ये कहा था कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी इंडेक्स मैटर करता है, लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी इंडेक्स मैटर नहीं करता है. लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है. यही हम लोग इस स्लाइड में देख रहे हैं कि 10 साल में वॉलेटिलिटी कितनी कम हो गई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स इज 17.61% और लेस होने, नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5.13% रह जाती है. तो Thank you. I think that's, you can close the presentation. Yes, sure, sir. So with this, any other questions? We could have played a few more rounds, but I think we thought that we should try and finish the whole game in 1 hour. And that's what we have done. I think that's amazing. Thank you, Varun. This was really, really good to do everything within time. Thank you so That's much, very, sir. very important. So any questions on any thing related to the game and all? And the best part is going to come, which is about the conference on 27th to 29th. We will be closing the registrations on 31st of August, and only few seats are left. Maybe around 15, 16 seats are there. So if some of you really wish to be a part of the conference, please try to be. This is going to be one of its kind conferences in India. Okay, the most elite one and the most engaging one, for sure. Yes. Thank you, Varun. As usual, always nice presentation. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Kanak ji. Thank you. So as I can see, Naresh ji, Varun, Rajiv, Dibyendu, all of them are coming to conference. Even Jeetlal Yes, Prajapati ji, definitely. Purushottam, rest. I am also coming, sir. Falguni. I Yeah, am also Falguni, coming. you are from which city? Mumbai. Acha, Mumbai.
Please come for the conference, which is at Delhi this year. Next year again, it will be at Mumbai. She is coming. Yeah. Acha, Surajit also is coming. So good. So most of the people who are coming are in this group. Yes. So, Yes. So we have some very, very, very good speakers. Mr. Samish Dalal, who is actually a phenomenal speaker, and he's a professor at SP Jain Global. And then we have Mr.